أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم 9 مئی میں پاکستان کے اندر جو واقعات ہوئے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا. ان لوگوں سے جن لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی ان کو تو چھوڑ دیا گیا، اور جو ہزاروں کے حساب سے جو بے گناہ لوگ تھے جو اس وقت زندان خانوں میں ہیں ان پہ کیس چلایا گیا. اور اب کیا ہوا ہے کہ فوجی عدالتیں سامنے آئی ہیں، اور یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ اب سزائیں دیں گی. پاکستان کا جتنا عدلیہ کا نظام ہے وہ پیرالائز کیا ہوا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری بیوروکریسی نے، اور ایک کیوس مچا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی اپنے ہی ملک کے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، جب ناانصافی کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی اگریشن میں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی بات 9 مئی کو ہوئی ہے. اتنا ایگریویٹ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں سازشیں بھی ہوئی ہیں، فتنے بھی ہوئے ہیں. لوگوں نے اپنا غصہ جا کے دیواروں پہ نکالا ہے، اور کیا ہے اس چیز کا ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور ایک پارٹی کو دیوار سے لگا دیا ہے جس کو اس وقت ملک کے لوگ اپنی ول سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ والی گورنمنٹ آئے گی اور یہ ہماری زندگیوں میں کوئی بہتری لے کے آئے گی. چلیں بات کرتے ہیں کس کی کتنی غلطی ہے. وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو اٹھایا، غائب کیا، زندان خانوں میں ڈالا، کئی لوگوں کو قتل کیا، ان کی جان لے لی گئی، کئی لوگوں کو بغیر کسی کرائم کے مہینوں بلکہ سالوں زندان خانوں میں رکھا، چادر اور چار دیواری کا تقدس توڑا، قاتلانہ حملے کیے، ماؤں کے گریبان پھاڑے، لوگوں کے گھر توڑے، بچوں کو ہراساں کیا گیا، منڈیٹ چوری کیا، چور لوگوں کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا گیا، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں. آئین کا تمسخر اڑایا گیا. نگران حکومتیں آئین کے کو وائلیٹ کرتے ہوئے زیادہ عرصے تک برجمان رہی. تمام قومی مشینری کو استعمال کیا گیا پولیٹیکل ریونج کے لیے. میڈیا کو کنٹرول کیا گیا. میڈیا کے ساتھ جو کیا گیا اس میں ARY بول، اور اس کے بعد بہت سارے اینکر، اور اسی طرح ارشد شریف اور بہت سارے جو صحافی جن کو اٹھایا گیا، مارا گیا، ڈرایا گیا. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دیواریں ہیں جن پہ حملہ کیا ہے لوگوں نے، کیا یہ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے زیادہ تقدس رکھتی ہیں؟ کیا اس ملک کے جو لوگ ہیں، جو اس گھر کے رہنے والے ہیں، کیا ان کی جانیں، ان کا مال، ان کی عزت کی کوئی وقت نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے، کوئی بولتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بولتا ہے اس کو ڈرا دیا جاتا ہے، اور یہ ڈر کا کھیل ابھی تک جاری ہے. پھر ہمارے ہاں جتنے بھی نالائق گدھے ہیں ان کو تو آپ پروٹوکال دیتے ہیں، اور جو لوگ کوئی تھوڑا سا ڈیسنٹ کام کرتے ہیں، بیلنس بات کرتے ہیں، لوگوں کی ول کی بات کرتے ہیں، ان کو آپ دیوار سے لگا دیتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے صدارتی ایوارڈ دیے ہیں.
इनमें से आधे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जुल्म का बाजार जमा किया हुआ था। आईजीज, उनको जनाब इस वक्त सदारती तगमे दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो वाले लोग जो इस नालायक गवर्नमेंट की तारीफें करते थे, उनको अवार्ड दिए गए हैं। लेकिन जो डिजर्विंग आर्टिस्ट हैं या जिन लोगों ने इस मुल्क की खिदमत की है, उन लोगों को इग्नोर किया गया है। खैर, ये तो होना था क्योंकि साफ नजर आ रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है। अब कर्जों पे ये मुल्क चल रहा है। किसी को ये परवाह नहीं है कि इस कल आने वाला दिन ये मुल्क कैसे चलेगा। हर कोई चाहता है कि उसका रिटायरमेंट प्लान बन जाए। हर जनरल साहब बस अपना रिटायरमेंट प्लान लेते हैं और इसके बाद जाके कहीं पे भी कोई कैसल खरीद लेते हैं, कोई बिजनेस खरीद लेते हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हम जो अवाम है इसका खमियाजा भुगतते हैं। क्या है, आज हमारी हर चीज महंगी हो रही है। जाहिर है जिनसे आपने कर्जा लिया है उनको तो अपने पैसे वापस चाहिए, लेकिन समझ नहीं आती कि ये कर्जा जाता कहाँ है। जो फरसूदा निज़ाम हमारे ऊपर इन लोगों ने इन्फोर्स किया है या जिन फरसूदा लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, ये वो फ्यूडरल लॉट है जो अंग्रेज के दिए हुई सौगात हैं हमारे लिए। हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा रहबर नहीं है कि जो लोगों को चैनलाइज करे, जो लोगों को कहे कि काम में हम इस मुल्क की बका है, काम में इस मुल्क का राइज होना लिखा है। हर कोई बस सियासत कर रहा है, ना जाने किस चीज के ऊपर। हमारे स्कूलों में भैंसें बंधी हुई है, हमारे घरों में साफ पानी नहीं आता, बिजली इतनी महंगी होने के बावजूद भी लोड शेडिंग जो होती है वो 12 और 14 घंटे होती है। न जाने इतना पैसा लेने के बाद भी अगर आप बिजली का भुगतान है तो मेरा ख्याल है कि हमें पत्थर के ज़माने में चला जाना चाहिए, उस ज़माने के अंदर रहना चाहिए। जो चीज़ें बुरी हैं जैसे चोरी हो गई, करप्शन हो गई, सूद हो गया, स्मगलिंग हो गई, वो इदारों की सरपरस्ती के अंदर हो रही हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर ईरान के बॉर्डर पे इतनी स्मगलिंग हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। क्या है कि इस वक्त हमने किसी मुल्क के साथ कोई ताल्लुकात बना के नहीं रखे। अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई है, इंडिया के साथ हमारी लड़ाई है, चाइना के साथ हमारा लेन देन जो है वो उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं है क्योंकि सी पैक तो बन रहा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर बहुत सारी जकड़बंदियां हैं। और रही सही कसर जो है वो हमारे लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने पूरी कर दी है। खैर, अब आप कहेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू फिक्स दिस थिंग, तो इसको फिक्स करने का तो जाहिर है यूनिटी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम इन लोगों को, ऐसे लोगों को गेट रेड नहीं करेंगे, जब तक कौम काम नहीं करेगी, जब तक अपने हक के लिए खड़ी नहीं होगी, मसले हल नहीं होंगे। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाती हैं कि ये जी अब आर्मी ट्रायल होगा, आर्मी का कोर्ट लगेगा, स्टैब्लिशमेंट अपना कोर्ट लगाएगी, तो फिर चीज़ें कभी वर्क ही नहीं हो सकती। ये जो हम जितने जज हैं, जिनके हम टीए डीए, उनकी तनख्वाहें, उनके तमाम चीज़ें हम देते हैं, ये किस काम के लिए हैं? इस वक्त अदालतों की जंग चल रही है और अदालतों के अंदर जितने भी केसेस हैं वो सब फरसूदा हैं जिनका नाम समझ ही नहीं आती कि ये केस किस चीज के हैं। पूरा दिन पूरी कौम को लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि ये केस हो रहा है जी, फलाने को सजा हो गई, फलाने को सजा हो गई, फलाने की सजा माफ हो गई, ये चीजें हो रही हैं। और दूसरी तरफ
कोई आदमी ये बात नहीं करता कि हम अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने एजुकेशन निज़ाम को ठीक कर सकते हैं, किस तरह हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, अपने लोगों को सेव कर सकते हैं। आज छोटे छोटे मुल्क पाकिस्तान को ड्राइव कर रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत जो है उसको ड्राइव करने वाले कराची से भी छोटे मुल्क हैं। और जिस तरीके से जो पाकिस्तान के सरकर्दा इस वक्त वजीर आजम या प्रेसिडेंट हैं, वो इतनी गंदी तस्वीर है पाकिस्तान की कि लोग हमें कहते हैं यार ये आपका प्राइम मिनिस्टर है, ये आपका प्रेसिडेंट है, जिसके बारे में पूरी दुनिया के अंदर लिखा हुआ है ये 2 नंबर आदमी है, ये चोर है, ये करप्ट है। तो फिर आप बताएं, आप अपनी अपनी ये चीजें कहाँ लेके जाएंगे? किसको अपनी कहानी सुनाएंगे? किसको अपना दर्द दिखाएंगे? हम लोग सोशल मीडिया की ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हम इनको उन चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, हक बात कहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे। हमारा ज़्यादातर टाइम जो होता है पास्ट डिस्कस करने में लग जाता है, या फिर सोशल इवेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने यहाँ से करनी है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है, लोगों को अपलिफ्ट करना है, उनको ये बताना है कि हाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ क्वालिटी इन ओवर लाइफ, वो चीज़ें हम बात ही नहीं करते। तो ये एक मैस है। और अगर हम रोज़ाना अदालतों को डिस्कस करते रहें, ये कहते रहें कि सिस्टम ख़राब है, फलानी चीज़ें, इस तनकीद का उन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने हर चीज़ करके देख ली है, एंड ऑफ द डे वो सुम्मुन बुकमुन हुमयुन है। ना वो आपकी बात सुनते हैं, ना आपकी चीज़ों को देखते हैं, ना आपके दर्द को समझते हैं। वो वही करते हैं जो उनके मुफाद में होता है। तो कम से कम एक लाइन, एक अल्फाज अपने राइट के लिए ज़रूर बोला करें, हक बात ज़रूर कहा करें। अगर आप नहीं कहेंगे तो कल के दिन आपकी औलादें, आपके आने वाला फ्यूचर वो सफ़र करेगा। तो सोचें कैसे हमने अपने आप को जगाना है, सही डायरेक्शन पे जाना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है, बच्चों के अंदर से गुस्सा निकालना है। उलमाए कराम खामोश हैं, हमारे जो पढ़े लिखा तबका है वो खामोश है। हमारा टैलेंट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, पाकिस्तान में कोई काम करने को तैयार नहीं है। और कोई बाहर का कोई मुल्क या कोई भी आदमी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, मुल्क के अंदर एक निज़ाम नहीं है। अब हम खामखा से सुबह सवेरे नारे लगाना शुरू कर दें कि हम पाक फौज को सलाम करें, ब्यूरोक्रेसी को सलाम करें, अदलिया को सलाम करें, जब अगर ये अपने काम नहीं कर रहे तो सर इस सलाम का क्या फ़ायदा है? इस इज्जत और तौकीर देने का क्या फ़ायदा है? हमारे खिलाड़ी पॉलिटिशियन बन चुके हैं, हमारे उलमाए कराम पॉलिटिशियन बन चुके हैं, हमारे जज पॉलिटिशियन बन चुके हैं, हमारे जनाब आर्मी के लोग सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं पॉलिटिकल। तो फिर जब सारे पॉलिटिशियंस होंगे तो फिर कौन किसकी क्या आवाज सुनेगा? आप क्या समझते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करने के बाद आप लोगों को मिसमराइज कर देंगे, सबज बाग दिखा देंगे, सब अच्छा की चीजें कहेंगे? ऐसा नहीं चलता। और जो गलत है, जिसने आइन तोड़ा है, जिसने गलत काम किया है, मेरा ख्याल है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, या कोई आम आदमी हो। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने लोगों को दबा रहे हैं। ये डर का खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। नाउ इज अ ग्लोबलाइजेशन। अब बच्चा पूरे दुनिया के निज़ाम को पढ़ता है, उन्हें पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन से मुल्क में कौन सा गवर्नेंस का निज़ाम है, किस तरीके से वो मुल्क राइज हो रहे हैं। तो जब वो अपने मुल्क का निज़ाम देखता है तो वो कहता है यहाँ तो जंगल का कानून है, इसको तो पाकिस्तान को तो बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। तो सोचें
ہم نے کیسے اس ملک کو اپلفٹ کرنا ہے. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اینڈ شکریہ. السلام علیکم.